Yes, very good morning, friends. So now we are continuing with next few problems of single entry systems. Or single entry system only, okay, not systems. Okay. Till this topic, we only saw double entry bookkeeping system. Okay. We would have debit as well as credit. Okay, both effect. But in this topic, trader prepares his books of accounts under single entry system. Okay. You will have all these items in your question. So you have to put it in a format where you will get net profit for the year. So first of all, closing capital, then add drawings, less additional capital, less opening capital. You will get profit before adjustment. You will get profit before adjustment. And then add incomes and gains, less expenses and losses. You will get net profit for the year. Net profit for the year. So now, I think problem number 5 was your homework. Am I correct? Problem number 5 was your homework. How many of you have completed the same? You have you had to prepare first of all opening statement of affairs, closing statement of affairs, and then statement of profit or loss. Very good, very good. हाँ हाँ, कुछ बच्चों ने नहीं किया है बट ऑलमोस्ट एवरीवन हैज कंप्लीटेड द सेम. सो हाँ, जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता. अगर बोलूंगा तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है. तो हम क्या करते हैं, जिन्होंने होमवर्क किया है उनके साथ आगे चलते हैं. सो आपने अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया है, आपने लिखा होगा शुभम, उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके नीचे एज ऑन 31 मार्च 2017 फॉर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो आपने ये एसेट साइड ये आइटम्स लिए होंगे एंड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिया होगा. तो बैलेंसिंग फिगर, कैन यू प्लीज टेल मी ओपनिंग कैपिटल, फिगर ऑफ ओपनिंग कैपिटल. Can you please tell me balance opening capital? Maximum students, maximum number of students are saying 76,200. Someone is saying 75,200, and I think one of the student is also saying 91,200. I don't know why. Creditors is liability. Huh? Sundry creditor should go to liability side. 91,200 is total. Oh ho. हाँ, तो एक बच्चे ने शायद क्रेडिटर्स भी एसेट साइड में लिया है. Creditors means payable, a person to whom amount is payable. This is our liability. Okay, so you should take creditors on liability side. Digambar, have you understood this? Okay, great. So balance will be 76,200, capital balancing figure. You have to present your answer like this. Okay, here it will be Shubham instead of Moria. Then statement of assets on 31st March 2017. All the assets on asset side and sundry creditors, that is liability on liability side. Balancing figure will be your capital. Capital will be balancing figure 76,200. Next, can you please tell me closing capital? Can you please tell me closing capital as on 31st March 2018? Sorry, as on 31st March 2018. Most of the students are saying 1,12,500.
1,12,500. Very good, very good. Samarth, Pratap, Aishwarya, Bhagyashri, very good. Digambar, please check your answer. Ritika, Gautami, Aniket, very good. टोटलिंग में कहीं मिस्टेक है क्या, चेक करो दिगंबर. 97,500 means difference of 15,000. I don't know why. हाँ, आपने शायद कैश एट हैंड जो है, कैश इन हैंड होना चाहिए वो, उसको गलती से कुछ अमाउंट अलग लिखा है क्या, चेक करो. यस प्लीज बोथ से टोटल बताओ बच्चों. हाँ, जिनका आंसर रॉन्ग है उनके लिए इजी होगा वो. एसेट और लायबिलिटी से टोटल कितनी आएगी, शायद 1,22,500. प्लीज चेक दिगंबर. लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स एक ही है, कैपिटल छोड़ के. कैपिटल तो बैलेंस शीट भी करे, बाकी सब एसेट साइड में. एसेट साइड की टोटल 1,22,500 है क्या, चेक करो. Okay, if you are making mistake in totaling, even if you know accounts, you will get wrong answers. Okay, because of totaling. Digambar, have you got 1,22,500 both side total? Please check. Others जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है अभी भी कर सकते हो आप कैलकुलेशंस. एटलीस्ट कैलकुलेशन तो करो. ओके, यस, आई होप दिगंबर यू हैव अंडरस्टूड दिस. हाँ, तो अब क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है. फर्दर कैपिटल मींस एडिशनल कैपिटल. ओके, एंड विड्रू 5,000 एज ड्राइंग्स भी है. राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम एंड इक्विपमेंट एट 5% पर एनम. तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा ये बताओ, डेप्रिसिएशन का बताओ कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ लेना है. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में. ओके, सिर्फ ई लिखा तो भी चलेगा, ई एंड एल के होते हैं. ई एंड एल के बजाय आप ई भी लिख सकते हो, एक्सपेंसेस. ओके, prepare statement showing profit or loss for made by him for the year ended 31st March 2018. तो आपने क्या किया होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोनों प्रिपेयर किए होंगे. उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस करना चाहिए. पहले आपको लिखना होगा शुभम, उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ, प्रॉफिट और लॉस विल बी करेक्ट वर्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस नॉट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस मत लिखो, प्रॉफिट और लॉस लिखो. ओके, आपको क्या करना है, एक करेक्शन करना है. अगर पहले से आप हर प्रॉब्लम में ऐसे लिखते हो तो प्लीज करेक्शन करो. आई एम रिक्वेस्टिंग. मैं यहाँ पे रफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे रफ कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ जाए. प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, एंड नहीं. आई होप एवरीवन इज मेकिंग करेक्शन. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इट शुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड लॉस नहीं. हर प्रॉब्लम में करो. अब तक के सब प्रॉब्लम में आई थिंक 5 प्रॉब्लम्स वी आर ऑन प्रॉब्लम नंबर 5. वी आर ऑन प्रॉब्लम नंबर 5. तो सभी प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखना है, एंड लॉस मत लिखो प्लीज. हाँ, आपने करेक्शन किया है तो डन बोल के आप प्लीज बता सकते हो, सो दैट वी कैन मूव अहेड. हाँ, इट शुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. हैव यू कंप्लीटेड द सेम?
यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 आप पहले लोगे क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेस ओपनिंग कैपिटल। आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है, कैपिटल एज ऑन, डेट लिखनी है आपको। हर बार ओपनिंग डेट यही नहीं होती है, चेंज हो सकती है। हाँ, अभी तक के सब प्रॉब्लम में यही डेट थी, बट क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा तब अलग डेट भी हो सकती है। आपको ओपनिंग कैपिटल लेना है, ये याद रखो। देन वी विल गेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। हाँ, तो यहाँ तक आओ बच्चों। चलो, होमवर्क जिन्होंने किया है बताओ, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है? प्रॉफिट है या लॉस है वो भी बताओ, अमाउंट भी बताओ। वेरी गुड। ऐश्वर्या हुंपार के, भाग्यश्री, गौतमी, रितिका, प्रताप, वेरी गुड। दिगंबर, अगेन 15,000 डिफरेंस है आपके आंसर में। आई डोंट नो व्हाई हर बार 15,000 डिफरेंस कैसे आ रहा है। आपने करेक्शन नहीं किया है क्या? चेक करो दिगंबर। आपने शायद क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्लीज चेक। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना था यहाँ करके देखता हूँ, करके बताता हूँ आपको। चेक करो। हाँ, प्लीज आप चेक करो ना। आप करेक्शंस तो करो। एक ही बार अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करेक्शन करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नहीं करोगे, तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? ओके, ड्राइंग शायद 5,000 है। 1,75,000, 17,500 it would be. Less additional capital 3,000, it would be 1,14,500. Then 76,200 opening capital, कितना आता है बताओ? 38,300। हाँ, प्लीज चेक बच्चों। जिनका भी करेक्ट नहीं आया है वो चेक करो, जिनका भी करेक्ट है वो थोड़ा रुको। हाँ, आज मैं सब नया सिखा रहा हूँ ना, ये सब तो आपको पता ही नहीं है, सब कुछ नया है ना। कितना टफ है ना ये, कितना नया है, कितना टफ है, एक को भी नहीं समझ रहा होगा ना ये। अगर कुछ पहले ही कवर हो चुका है और आपका रिवीजन चल रहा है, दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक रिवीजन ओनली। हर प्रॉब्लम में आप यही कर रहे हो और फिर भी आप गलती करते हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू इंप्रूव दैट। ओके, यस। नेक्स्ट, ऐड इनकम्स एंड गेन्स तो कुछ नहीं है, बट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, उसमें डेप्रिसिएशन लेना होगा आपको। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर वो लो। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, आई होप आप प्रेजेंटेशन पता है कैसे करोगे। ऐसे करना है आपको प्रेजेंटेशन। इनकम्स एंड गेन्स डैश करो, लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। हाँ है, ये परसेंटेज मत लिखो, ये अलग प्रॉब्लम का है। 10% ही है क्या? ओके, 10% ऑन समथिंग समथिंग, अमाउंट ये नहीं है। ओके, अमाउंट इज डिफरेंट फॉर फर्नीचर। 10,000 है। 10% ऑन 10,000 फॉर 12 मंथ्स कितना आता है? 1,000, वेरी गुड। इनर कॉलम में लिखो। फिर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है ना, यहाँ पे इक्विपमेंट आना चाहिए। 5% ऑन 8,000 फॉर 12 मंथ्स। 5% ऑन 8,000 फॉर 12 मंथ्स कितना आता है? 400। आउटर कॉलम कितना आएगा? आउटर कॉलम इट वुड बी 1,400, वेरी गुड। 1,400 आएगा आउटर कॉलम में। हाँ, तो यहाँ पे इनकम्स एंड गेन्स तो कुछ नहीं थे,
38,300 ओनली। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में 1,000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट का 1,000 सॉरी 400, तो टोटल इट विल बी 1 लाख सॉरी 1,400। ये लेस करो बच्चों, ये लेस भी नहीं करने आ रहा है बच्चों को, क्या बोलूं अब मैं, ये इतना लेस करने भी नहीं आता है, करे तो करे क्या। ऐसे डबल अंडरलाइन करो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यस। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 5 में कुछ टफ था क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। यस प्लीज, एनीवन, क्या टफ लगा आपको प्रॉब्लम नंबर 5 में? नथिंग। हाँ, अगर टफ लगा है तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, बिकॉज बाद में कैसे होगा, अगर आपको बेसिक्स आता है तो मैं बेसिक्स रिवाइज नहीं कर सकता हूँ बार बार। ओके, जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको आना चाहिए। अब एसेट्स लिखना है एसेट साइड में, लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड में, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल। यस, कोई भी यस बोल के कुछ बोल रहा नहीं है, क्वेरीज वगैरह कुछ पूछ रहा नहीं है, तो वी कैन मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 6। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 6। हाँ, रीड करो और क्या करो, स्टार्ट करो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करो। यस, क्विकली। Jyoti keeps her books on single entry system. From the following particulars, prepare opening and closing statement of affairs and statement of profit or loss for the year ended 31st March 2018. आपको डिटेल्स दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट्स है। हाँ, एडजस्टमेंट आपको रीड करने हैं तो रीड कर सकते हो आप, देखो क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, अब एडजस्टमेंट्स बढ़ेंगे। हाँ, एडजस्टमेंट बढ़ेंगे। अब देखो क्या क्या दिया है। First, Jyoti has withdrawn 33,500 from the business for her private use. So this would be drawings. She has introduced additional capital of 5,000 in the business on 1st January 2018. This would be additional capital. Additions to machinery were made on 1st January 2018. ये क्यों दिया है आपको? थोड़ा बहुत सोचो, और सोचो और मुझे बताओ। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस देखो 90,000 है, क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है 1,20,000। तो जो एडिशन हुआ है मशीनरी में, वो कब हुआ है? 1 जनवरी 2018 को। तो आपको क्या लगता है क्यों दिया है? आप टाइम पास के लिए?
यस बच्चों बताओ ना, डेप्रिसिएशन के लिए दिया है उन्होंने, समझ रहा है क्या? नेक्स्ट लाइन में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, दिस इज एक्सपेंस ना। हाँ तो डेप्रिसिएशन लेते टाइम आप को एडिशंस देखना होगा। ओपनिंग 90,000 था, क्लोजिंग 1,20,000 है, तो आप किस पे लोगे? हाँ अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको क्लोजिंग पे लेना होगा। एज्यूमिंग की परचेसेस कब हुए? 1 अप्रैल को, फर्स्ट डे ऑफ ईयर को। बट अगर वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं जो एडिशन है, एडिशन कब हुए हैं, कब हुआ है एडिशन? 1 जनवरी 2018 को, तो आपको डेप्रिसिएशन के टाइम बहुत केयरफुल रहना है और कैलकुलेशन अच्छे से करना है। तो मुझे कौन बताएगा? मशीनरी का डेप्रिसिएशन बताना है, अभी चाहिए मुझे मशीनरी का, फर्नीचर का नहीं, मशीनरी का डेप्रिसिएशन अमाउंट चाहिए मुझे। आपको डेप्रिसिएशन टॉपिक आता है या नहीं मुझे अभी समझेगा। हाँ वो समझा है या नहीं अभी समझेगा मुझे। हाँ बच्चे बोल रहे 12,000। हाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, उतना इजी नहीं है वो। someone is saying 3,000। वाह वाह वाह। और कोई? एक बोल रहा है 9,750। ओके, फिर से एक 12,000। 12,000 मैक्सिमम आंसर आर 12,000। आपको सोचना होगा, आपको कैलकुलेशंस करने होंगे। ओपनिंग मशीनरी इज 90,000, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। मुझे आप ये बताओ जी, ये जो 90,000 की मशीनरी है ओपनिंग में जो थी, आपने कितने मंथ्स यूज किए है वो? ओपनिंग में 1 अप्रैल से अपने पास है, अभी भी है, तो आपने 12 मंथ्स यूज किए है ना, तो 10% डिप्रिशिएशन ऑन 90,000 फॉर 12 मंथ्स। समझ रहा है क्या? देखो बच्चों, ओपनिंग में जो मशीनरी है 90,000, वो तो आपने 12 मंथ्स यूज की है, अभी तक है वो आपके पास। समझ रहा है क्या? बट जो मशीनरी आपने परचेस की है 30,000 की, सर आपको कैसे पता चला? 1,20,000 क्लोजिंग है, ओपनिंग 90,000 है, दैट मीन्स परचेस इज 30,000 ना। तो ये जो 30,000 एडिशन हुआ है मशीनरी में, 10% ऑन 30,000, वो हुआ है 1 जनवरी को। तो मैंने यूज कब स्टार्ट किया है? 1 जनवरी 2018 को। तो जनवरी, फेब एंड देन मार्च, तो फॉर 3 मंथ्स ओनली मैंने यूज किया है, तो उतना ही डेप्रिसिएशन आएगा। समझ रहा है क्या बच्चों? हाँ आप डायरेक्टली 1,20,000 पे नहीं ले सकते। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि एडिशन कब हुआ है, तब आप ले सकते हो। बट अगर आप, उन्होंने क्लियरली बताया है कि एडिशन 1 जनवरी 2018 को हुई है, तो 10% ऑन 30,000 फॉर 3 मंथ्स ओनली बिकॉज ऑफ 1 जनवरी 2018। तो तब से आपने यूज स्टार्ट किया, तो जनवरी, फेब एंड मार्च। हाँ तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा? 9,000 फॉर ओपनिंग। ओके, और जो एडिशन है इस पे 3,000 फॉर 3 मंथ्स, कितना आएगा बताओ बच्चों? 3,000 आएगा फॉर 12 मंथ्स, दैट मीन्स 10%। बट मुझे 3 मंथ्स के लिए चाहिए ना, ये कैलकुलेशन करके बताओ कितना आता है? 750। सो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 9,750।
समझ रहा है क्या बच्चों? आई थिंक ऐश्वर्या कुलकर्णी ने आंसर करेक्ट दिया था, वेरी गुड ऐश्वर्या। बाकी बच्चों ने अलग आंसर दिया था, कुछ बच्चों ने डायरेक्टली 1,20,000 के 10% कर दिए, 12,000 आंसर बोल दिया, उतना इजी नहीं है वो। एडिशंस वगैरह टाइम पास के लिए दिया है क्या आपको, डेट वगैरह, एडिशन का डेट वगैरह टाइम पास के लिए है क्या? वो नहीं, आपको थोड़ा सोचना होगा। ओपनिंग की मशीनरी जो थी, हमने 12 मंथ्स यूज की है, उस पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, और जो एडिशन है 30,000 का, उस पे 3 मंथ्स का 1 जनवरी से। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ, जिन्होंने 3,000 बोला था शायद उन्होंने सिर्फ एडिशन पे डिप्रिसिएशन लिया, तो ओपनिंग की मशीनरी पे डिप्रिसिएशन नहीं लोगे, लेना होगा ना वो भी। हाँ, और आपने एडिशन पे डिप्रिसिएशन लिया और डायरेक्टली आपने 10% ऑफ 30,000 लिया फॉर 3 मंथ्स। आपको मैंने हर बार बोला है, हर बार डिप्रिसिएशन टॉपिक में भी पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर हाउ मेनी मंथ्स नहीं सोच रहे हो व्हाइल कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, यू विल डेफिनेटली डू ब्लंडर्स इन एग्जाम। ओके, अगर कहीं पे कुछ नहीं है तो फॉर 12 मंथ्स आपको लेना है, मुझे पता है, बट फिर भी आप रीड तो करो ना। वैसे आप ट्राई करो कैलकुलेशन करते टाइम कि कितने मंथ्स का लेना है, देखो चेक करो क्वेश्चन। हर टाइम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यू शुड चेक इट। ओके, यू आर कैलकुलेटिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स, प्लीज चेक दैट। ओके, नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस 9,750? ओपनिंग का जो भी मशीनरी है वो अभी तक है 12 मंथ्स अपने हमने यूज किया है, तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, और जो एडिशन हुआ है 1 जनवरी को, वो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 9,750। यस, प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, बहुत कम लोगों को समझा है शायद, बाकी बच्चे रिलैक्स सो के देख रहे हैं शायद लेक्चर, बट इट्स ओके। हाँ, मेरे तरफ से जो भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उनके लिए मैं 100% मेरे तरफ से दे रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, बट फ्रॉम माय साइड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। फिफ्थ, मेंटेन आरडीडी एट 15% ऑन संडे डेटर्स। हाँ, ये कहाँ जाना चाहिए बताओ? एक बच्चा बोल रहा है इनकम, एक बच्चा बोल रहा है एक्सपेंस एंड लॉस। आरडीडी मींस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इनकम है ये। जो भी इनकम बोल रहा है, सोचो ये इनकम है आपका, आपको लॉस होने वाला है, आपको डाउट है पैसे नहीं मिलने वाले हैं, और ये आपका इनकम है। आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा प्लीज सोच के बताओ। आपको अगर किसी पे डाउट है पैसे नहीं मिलने वाले, तो ये आपको इनकम है या एक्सपेंस है, लॉस है, क्या है बच्चों? एक्सपेंस होगा ना ये, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंडर आएगा। आरडीडी कहाँ लेते थे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, याद है ना? न्यू आरडीडी। वैसे ये भी आरडीडी आपको मेंटेन करना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो लॉस होगा ना, आपको डाउट है, डेटर्स जो है ना 1,60,000, डेटर्स के टाइम आपको क्लोजिंग लेना है। यहाँ पे ओपनिंग मत लो, अब डाउट एट द एंड है। ये समझ रहा है क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल थिंक ऑफ आरडीडी, ओपनिंग पे नहीं। ओपनिंग पे जो है वो लास्ट ईयर को हो चुका है आरडीडी। ओके, इस ईयर का ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ना, तो तब आरडीडी कंसिडर कर चुके हैं। अब क्लोजिंग पे कैलकुलेट करना है आपको। मुझे कैलकुलेट करके बताओ आरडीडी 15%। हाँ, क्लोजिंग पे कैलकुलेट करना है आपको, 1,60,000 पे। क्लोजिंग बैलेंस जो है उस पे डाउट होगा ना, पहले का क्यों देखोगे आप? एट द एंड ऑफ द ईयर चेक करोगे। आरडीडी एट द एंड ऑफ द ईयर ही चेक करते हैं, ओके, मतलब कैलकुलेशंस करते हैं। 15% ऑन सन्डे डेटर्स, बताओ बच्चों।
वेरी गुड वेरी गुड। 15% आता नहीं है आपको कैलकुलेट करने? पहले 10% कैलकुलेट करना है आपको। एक जीरो जाएगा सिर्फ यूनिट प्लेस का, देन डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5% मिलेगा। 10% प्लस 5% करो, पहले 10% आपको मिला था, उसमें आप 5% ऐड करो, 15% मिल जाएगा आपको। आंसर इज 24,000। वेरी गुड। जो भी नया है ना वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अगर समझ रहा है ना तो मैं मुझे इतना ही बोलना है, जो भी नया है, जो भी न्यू आइटम है, न्यू एडजस्टमेंट है, मैं डिस्कस करता हूँ। आपको अगर मेरी टीचिंग स्टाइल समझी होगी, मैं जो बार बार रिपीट होता है ना उस पर फोकस कम करता हूँ, बिकॉज पहले एक दो बार मैं बहुत ज्यादा बार बोल देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड टाइम ही, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही, और उसके आगे जो क्वेश्चंस पे न्यू एडजस्टमेंट होते हैं उस पर फोकस होता है मेरा। हाँ, तो अगर आपको पहले का नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, जो पहले के लेक्चर मिस कर चुके हैं उनको समझ रहा होगा। यस, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, बट बच्चे कॉम्प्लेक्स कर देते। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है? देखो स्टॉक यहाँ पे, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है 90,000, वो बोल रहे हैं कि ये ओवर वैल्यूड है 20% से, ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। मतलब ये जो 90,000 है ना, सपोज 100 करेक्ट है, सुनो ना, आपको कैलकुलेशन कैसे करने हैं। अगर 100 करेक्ट है तो वो बोल रहे हैं कि 20% ज्यादा है, जो हमारे बुक्स में है वो 120 है। समझ रहा है क्या? ऐसे कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज हमको कैलकुलेशन इजी करना है। वो क्या बोल रहे हैं, जो 90,000 है ना, देखो हाँ, 90,000 जो है ना वो 20% ज्यादा है, ओवर वैल्यूड बाय 20%। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। दैट मीन्स अगर 100 करेक्ट वैल्यू है तो वो बोल रहे कि 20% ज्यादा, मतलब 120% है 90,000। तो हमको चाहिए 100% ना। समझ रहे हैं क्या? मतलब 100% ही दिखाना है। तो मुझे क्या करना होगा, ये 20 चाहिए, 20 एक्स्ट्रा जो है। आप डायरेक्टली इसके 20% नहीं निकाल सकते हो। जब भी वो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन देंगे, आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो 20% ऑफ 90,000। दैट वुड बी ब्लंडर। हाँ, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर 120 90,000 है तो 20 कितना, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो करके मुझे बताओ बच्चों, ये कितना आएगा? यस, कैलकुलेशन प्लीज। वीक वीक, बहुत बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स होके बैठते हो आप। कैलकुलेशन के लिए कोई भी रेडी नहीं है। ऐसे लगता है सब सर ही कर देंगे, सर ही एग्जाम देंगे। 15,000, ओके ग्रेट। अब मुझे ये बताओ, आपने ये 15,000 कैलकुलेट किया, ये आपका इनकम एंड गेन्स में लोगे आप या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लोगे? हाँ, आपको क्या चेक करना है इतना मैं हिंट दूंगा। अगर एसेट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो लॉस है। एसेट की वैल्यू अगर बढ़ानी है आपको तो आपका गेन है। वेरी गुड गौतमी। आपको सोचना है, आपको क्या करना है, आपको सोचना होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है 90,000, मतलब ओवर वैल्यूड बाय 20%। ये 90,000 जो है वो ओवर वैल्यूड है, हमने ज्यादा दिखा है। अब हमको क्या करना है, कम करना होगा ना। 20 से आपको कम करना होगा, कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। 20% नहीं बोल रहा हूं मैं, ओके। तो आपको क्या करना है, करेक्ट वैल्यू दिखाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, एसेट की वैल्यू अगर आप कम कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो आप कहाँ लोगे ये 15,000? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। समझ रहा है क्या बच्चों? बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, 12th लेवल की एडजस्टमेंट है ये। हाउ उतनी टफ नहीं है, ओके।
अगर आप ध्यान दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो समझ रहा होगा आपको। वो क्या बोल रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये ओवर वैल्यूड है, मतलब अगर 100 करेक्ट है ना तो ये 120 है 90,000, तो मुझे 20 वो कम करना होगा ना, डायरेक्टली 20% जो भी लेगा उसका आंसर आएगा 18,000 विच वुड बी 100% रॉन्ग। ये रॉन्ग आंसर है, 20% आप नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। ओके, ये वैल्यू 120% है, मुझे उसमें से 20% कम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 15,000 इज ओवर वैल्यूड, तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है। कम करना है, एसेट की वैल्यू अगर आप कम कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6 फ्रॉम माय साइड। ओके, और कुछ नया है क्या इसमें जो आपको नहीं आता है? जो भी नहीं आता था वो सब मैंने बता दिया है। तो एज अ होमवर्क आप करोगे या होमवर्क नहीं चाहिए आपको, जल्दी बताओ। एज अ होमवर्क ट्राई करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो भी यस यस टाइप कर रहे, बहुत बढ़िया, आप ट्राई तो करो, आप बहुत आगे जाओगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 6 करना है। यस, आज के लिए इतना ही। बाय करना है बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।